کہ میرے بیٹے مجدد الدین کی بدلے میں سلطان سے ملک اور اس کا سر دونوں چھین لیا جائے، اور اللہ نے اس کو قبول فرما لیا۔ روحانی شفا خانہ کے تمام ناظرین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ حروف تہجی کی اگلی زکوٰۃ والی شفٹ جو ہے 2 دسمبر سے چالو ہونے جا رہی ہے، تو جن حضرات کو بھی حروف تہجی کا عمل کرنا ہے وہ برائے مہربانی اس نمبر پہ جو ہے آپ 27 نومبر سے پہلے تک رابطہ فرما لیں، تاکہ آپ کو ساری معلومات دے دی جائے اور آپ حروف تہجی کا زکوٰۃ نکال سکیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر کی ناراضگی کہ جو بہت خطرناک انجام تک پہنچتا ہے، ایک واقعہ طبقات صوفیہ اور حالات صوفیہ کے اندر یہ چیزیں ملتی ہیں کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ گزرے ہیں مجدد الدین بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بغداد شریف کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حالت محویت کے اندر اب تمام اپنے فقراء کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو شیخ کی تربیت کے تعلق سے ایک گفتگو چلی۔ تو یہ مرید ہیں نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ اپنے مصاحبین سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ انڈے تھے، کیا تھے؟ انڈے تھے، لیکن نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پروں کی گرمی سے جب ہم ان کے تصرف میں گئے تو انہوں نے اپنی تعلیم و تربیت کی گرمی سے، یعنی اپنے تصرف کے پروں میں انہوں نے لیا اور ہمیں بچہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ انڈے سے ہم بچے کی شکل میں آ گئے۔ اس کے پہلے بھی اسی سے ریلیٹڈ جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا، تو یہ اصطلاح صوفیہ کی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہم جو انڈے تھے اپنے تربیت میں لے کر کے انہوں نے ہم کو کامل ایک بچہ بنا دیا۔ چونکہ ہم انڈے تھے بطخ کے، بچے تھے بطخ کے، دریا میں اترے اور تیر گئے، مگر شیخ نجم الدین کبرا وہیں کنارے ہی رہ گئے۔ یہ لفظ ایک تھوڑی سی توہین کا پہلو اس میں ظاہر ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ ایسا ڈپارٹ، ایسا حساس ڈپارٹ ہے، یعنی ذرہ برابر بھی بے ادبی جو ہے بڑی نحوستوں کی وجہ بن جاتی ہے، آدمی کی سب لپٹ جاتی ساری ریاضتیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم بطخ کے بچے تھے، دریائے توحید میں تیر گئے، لیکن ہمارے شیخ کنارے ہی رہ گئے۔ یہ بات شیخ نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے بھانپ لیا، ان کی فراست سے یہ بات آپ کے، اور جیسے آپ نے بھاپا آپ کی زبان سے نکلا کہ خداوند اے مولا تو اس کو دریا میں ہی موت دے دے، یعنی مجدد الدین کو دریا میں ہی موت دے دے۔ جب یہ شیخ مجدد الدین رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ شیخ نے اپنے کیا نام ہے کشف کے ذریعے آپ نے بھاپ لیا، اور یہ جملہ شیخ کی زبانی نکل گیا، اب ان کا رونا دھونا شروع۔ تو اب کریں کیا؟ بہت ڈر گئے۔ تو آپ کی ہی ایک پیر بھائی شیخ سعد الدین حموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کے پاس گئے کہ یار حضرت کو پٹاؤ، کسی طریقے سے راضی کرو کہ یہ جو مجھ سے خطا ہوئی، واقعی خطا ہو گئی، مجھے شیخ کے تعلق سے میرے دماغ میں بات آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اب میں پچھتا رہا ہوں۔ تو شیخ سعد الدین حموی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہے، جو نجم الدین کبرا رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی مریدین میں سے تھے، کہ حضرت کا موڈ ٹھیک ہونے دو، کسی دن وہ خوشی کے حالت میں رہیں، پھر ہم موقع دیکھ کر کے بتانا، پھر ہم یہ سفارش کر دیں گے۔ ایک دن موقع مل گیا، یعنی نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
महफिल सिमा में थे और हालत सुरूर में थे, एकदम कैफ में थे, तो आपने इशारा किया कि हजरत मूड में है, आ जाओ, आप आ जाओ। तो मुजद्दिदुद्दीन बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, ये मौका देखे और हजरत के क्या नाम है महफिल में आए, जहाँ चप्पल निकाला जाता वहाँ पे अपने सर पर अंगारे का वो तपेला या तश्त लेके हाजिर हुए। जब नज़र नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की पड़ी तो आप समझ गए कि ये क्या चाह रहे हैं। तो आपने फरमाया कि बेटा, चूंकि तूने माफ़ी तो मांगा है फ़कीरों के तरीके पर, इसीलिए जाओ, तुम्हारा ईमान सलामत रहेगा, मगर सर तो नहीं बचेगा, सर तो जाएगा, सर तुम्हारा जाएगा। और तुम्हारे सर के साथ साथ, चूंकि ये मुल्क ख़वारज़म में रहते थे, बहुत सारे सरदाराना ने ख़वारज़म का भी सर जाएगा तुम्हारे सर, लेकिन तुम्हारे सर के साथ मैं भी रहूंगा। ये बात आपने कही। तो अब बात ईमान की सलामती की आगे तो आप खुश हो गए, बोले शेख मेरे लिए यही काफ़ी है कि शेख की नाराज़गी में ईमान जाने का भी अंदेशा लगा रहता है, ऐसे असबाब बन जाते हैं। तो अब मेरा ईमान जाएगा, सर जावे तो जाए, कोई टेंशन नहीं। आप खुश हो गए, आप खुश हो गए। अब कुछ दिन गुजरने के बाद, चूंकि थोड़े अरसे बाद ही ये हालात को पेश आना हुआ, हालात ऐसे शुरू हो गए कि शेख मुजद्दिदुद्दीन बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी खानकाह, अपने मकाम पर बहुत बड़े वाज़ो नसीहत की महफिल करते थे, और सुल्तान यानी शाह ख़वारज़म की वालिदा भी उनके महफिल बाज़ में आती थी, यानी वक्त के बादशाह की वालिदा भी उनके महफिल बाज़ में आती थी, और जो बहुत ही खूबसूरत थी। अब ये इनके जो हासिदीन थे, इनके शेख मुजद्दिदुद्दीन बगदादी रदी अल्लाह ताला अन्हु के, वो ताड़ में थे कि कुछ तो मौका मिले कि इनकी चुगलखोरी किया जाए। तो एक दिन देखे कि सुल्तान जो है थोड़ा सुरूर और क्या नाम है किसी दूसरे मूड में है, जाके इन लोगों ने चुगली किया। क्या किया कि सुल्तान आपको खबर है? बोले क्या हुआ? बोले आपकी वालिदा ने शेख से शादी कर ली है। इमाम आज़म अबू हनीफा के मसलक के नज़दीक आपने उस तरीके पे मुजद्दिदुद्दीन बगदादी से उन्होंने निकाह कर लिया है। अब ये हालत सुरूर में था, इसने हुक्म दिया कि जा करके शेख के हाथ पैर बांध के उनको दरियाए दजला में फेंक दो। क्या करो? दरियाए दजला में फेंक दो। अब बादशाह वक्त का है, जो मुंह से निकल गया फरमान वही है। इन्होंने इनके हाथ पैर बांधे और जाके दजला दरिया में फेंक दिए। अब दरिया में जब इन्होंने फेंका तो इधर फौरन शेख नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को फिरासत से फिर इनको पता चला। फिर आप बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, फिक्रमंद हुए, और आपने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और लोगों ने जब खबर दिया कि आपके मुरीद को बादशाह के हुक्म पर क्या नाम दरिया में डालकर हलाक कर दिया गया है, उनको शहीद कर दिया गया है, तो आप जो है बहुत गमगीन हुए और अपने सर को सजदे में आपने रख दिया। सर को सजदे में रखने के बाद जब सर आपने उठाया तो आपने कहा कि मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ किया है कि मेरे बेटे मुजद्दिदुद्दीन की बदले में सुल्तान से मुल्क और उसका सर दोनों छीन लिया जाए, और अल्लाह ने इसको कबूल फरमा लिया। अब सुल्तान ख़वारिज़म का उसका सर भी जाएगा, उसका मुल्क भी जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, और पूरा मुल्क उसका लुट जाएगा। ये शेख की ज़ुबानी, शेख नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से ये अल्फाज निकलने थे कि शाह ख़वारज़म जिसका नाम मोहम्मद था, जब उसने सुना तो फिर वो भी घबराया। भाई शेख के मुंह से निकली हुई बात है,
अब वो जो शाह के हज़रत के बारगाह में शेख नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह तआला की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा कि हाजिर होने के साथ साथ एक तश्त लाया। तश्त के अंदर अशरफियाँ रखी हुई थी, अशरफियों के ऊपर कफन का कपड़ा और उसके ऊपर तलवार रखी हुई, और दरवाजे पे आके नंगे सर खड़ा हुआ, नंगे पैर, कि हजरत आपके कदमों पर उसने सर टेक दिया और कहा कि हजरत हमको माफ कर दें, अगर सर के बदले उनके कत्ल के बदले अगर दय्यत चाहिए यानी फिदिया तुमको चाहिए तो ये अशरफियां रखी हुई हैं, और अगर किसास चाहिए यानी खून के बदले खून, तो ये तलवार है, आप हमारी गर्दन काट दीजिए। तो शेख नजमुद्दीन कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि दियत के अंदर तेरा मुल्क और तेरा सर दोनों जाएगा, और तेरे सरदारों का भी सर जाएगा, तेरा मुल्क भी हलाक और तबाह हो, तेरा मुल्क भी तबाह हो जाएगा। ये शेख की जुबानी ये बात निकला तो वो समझ गया कि अब बात बनने वाली नहीं है। आपने फरमाया कि तेरा सर भी जाएगा और तेरा मुल्क भी जाएगा और तेरा तख्तो ताज सब जाएगा, तेरा सर और मुल्क कुछ भी नहीं बचेगा, दोनों तबाह कर दिए जाएंगे, दोनों बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये बात आपकी जुबान से निकला। वो मायूस होकर वापस आया। थोड़े ही दिनों बाद चंगेज खान ने जो हमला किया, तो सारी दुनिया, अगर कोई पढ़ा लिखा शख्स है तो जानता कि चंगेज खान ने अहले बगदाद का क्या हाल किया। सर भी गया, माल भी गया और पूरे मुल्क भी तबाह कर दिया उसने। तो शेख की पीर की थोड़ी सी बेअदबी ये कितनी बड़ी नहूसतों का, कितनी बड़ी बलाओं का एक झड़ी बन जाती है। इसीलिए तरीकत की दुनिया में अहलुल्लाह के आदाब यूं सिखाए जाते हैं ताकि उनकी बेदबी जर्रा बराबर ना होने पावे। रही बात तरबियत की, तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रदी अल्लाह तआला खुद फरमाते हैं कि सालिक की तरबियत मिसले अंडे के है। सालिक जो राह सुलूक में चलने वाले लोग हैं वो मिसले अंडे के हैं। मुर्शिद अपने इरशादो तरबियत के परों से, मुर्शिद अपने इरशादो तरबियत के परों से उसको गर्मी दे करके, उसको तरबियत करके, उसको बच्चे की शक्ल जो जिसमें आवाज़ें लाहूती निकलती हैं उसको परवरिश करके उसको वजूद दुनिया में लाता है। और अगर किसी वजह से वो मुरीद पीर से अगर बददिल होकर के उनकी सोहबत को तर्क कर देता है तो अब ये बैजा जो फासिद हो जाता है, क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है। अब वो चाहे जितने बड़े शेख के पास जाके वो तरबियत पाए तो उसका वो नक्स, उसका ऐब, उसका फसाद ख़त्म नहीं होता। इसीलिए जो मशहूर है कि एक पीर छोड़ के दूसरा पीर नहीं करना चाहिए, ये असल बात ये वाली है। लेकिन वो पीर सुलूक पे चला रहा हो, तरबियत कर रहा हो, तो सिर्फ मुरीद कर लिए ज़िंदगी में मुलाकात नहीं होगी, तो ये पीरी मुरीदी तो एक रस्म तो है। लेकिन यहाँ मुराद इसकी ये है कि अगर वो तरबियत, अब जैसे आप लोगों को मैं सुलूक की तरबियत दे रहा हूँ, अब यहाँ से कोई वजह बन जाए बददिल होने की, उसके बाद कोई शेख चाहे कि अब इसको मैं रिपेयर कर लूँ तो नहीं, रिपेयर नहीं हो पाएगा। वो तुम्हारे अंदर जो जौहर है रूहानियत का वो ख़राब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के बरगाह में दुआ है कि मुर्शिद करीम और मशाइखीन रहीम इनके औसाफ से, इनके तसर्रुफ़, इनके परों में हमको देने की तौफीक अता फरमाए, ताकि वो जैसे भी चाहें उल्टा सीधा अपनी क्या नाम है आजमाइश में डालकर या जिस भी तरीके से चाहें वो तरबियत का हक उनको देना चाहिए, ताकि हम जो है, जो हमारे वजूद के अंदर जो एक खोल पड़ा हुआ है वो फाड़ करके उसके अंदर से मुर्गे लाहूती तैयार हो, ताकि वो खुद जो है आइंदा अपनी नस्लें चला सके। आमीन फुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान रहीमीन।